Hello, so welcome to the next class. Today we are going to discuss about the streamer's theory of breakdown gases and the Paschen's law. Okay, on the last run we have discussed about the Townsend's breakdown mechanism, Townsend's equation. So there are a few drawbacks in the Townsend mechanism which are overcome by the streamer's theory of breakdown gases. So we are going to discuss about those drawbacks and what is the streamer's theory. We are going to discuss that now. So let's have a look at them. So Townsend's mechanism, when applied to break down atmospheric pressure, was found to have certain drawbacks, as I have told. Firstly, according to Townsend's theory, current growth occurs as a result of ionization process only. We have discussed that due to ionization by collision, photoionization, metastable atoms, all those things are due to the ionization processes. Okay, but what they are telling is, but in practice, breakdown voltages were found to depend on the gas pressure and the geometry of gap. Okay, so it they depends upon these things, the gap pressure and the geometry of the gap, किस तरह से उसका construction है, how they और the pressure उसका जो है. Okay, secondly, the mechanism predicts time lags. The mechanism predicts time lags of the order of 10 to the minus 5 seconds, while in actual practice breakdown was observed to occur at a very short time of the order of 10 to the minus 8 सेकेंड. एक्चुअल में ये होता है, बट दे आर शोइंग दैट. ओके, तो ये प्रॉब्लम जो 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 ड्रॉबैक्स हैं वो टाउनसेंड्स मैकेनिज्म में वो इसमें बताए गए हैं. ओके, and then also, while the Townsend mechanisms predict a very diffused form of discharge, in actual practice, discharges were found to be filamentary and irregular. वो irregular filamentary होते हैं, उसमें बहुत regular उसमें किए गए थे शो कि बहुत ही managed way में आपका जो वो ionization process होता है, but it is not like that. बहुत irregular filamentary होते हैं. Okay, the Townsend mechanism failed to explain all these observed phenomena, and as a result, around 1940, Rather and Meek and Loeb independently proposed streamer theory. ये तीन scientists थे, they are those जिन्होंने फिर streamer theory propose करी थी कि streamer theory में क्या होता है. Okay, so let's have a look at this. अब यहाँ हम जानते हैं the theories predict the development of a spark discharge directly from a single avalanche. There is the theory predict the development of a spark discharge directly from a single avalanche, in which the space charge developed by the avalanche itself is said to transform the avalanche into a plasma streamer. Means what? अब यहाँ अगर आप देखें तो जैसे कैथोड है, एनोड है, जो आयनाइजेशन बाय कोलिजन, फोटो आयनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें होता ही है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके एनोड की तरफ मूव करते हैं. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं उसके बारे में माना जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो बीच में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्पेस के अंदर होते हैं तो उनसे कोलिजन होगा. जब कोलिजन होगा तो आफ्टर द कोलिजन दे गिव वन इलेक्ट्रॉन एंड द आयन, पॉजिटिव आयन. ओके, इलेक्ट्रॉन मिलता है और पॉजिटिव आयन मिलता है, जिसमें हमने बताया था वो इलेक्ट्रॉन सारे समअप होने के बाद में आपके एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो आयन्स होते हैं वो आपके कैथोड की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो द थ्योरी प्रेडिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज. ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज एकदम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम अ सिंगल एवलांचे. एवलांचे तो आप जानते हैं तूफान, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक तूफान आता है इसमें. इन विच द स्पेस चार्ज उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ मूव करे, उसके बाद में यहाँ पर बीच में जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो डेवलप होते चले जा रहे हैं स्पेस के अंदर, वो आपका स्पेस चार्ज कहलाता है. ठीक है, जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट नहीं किया था फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जो यहाँ मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, बट वो दे डेवलप्ड इन द स्पेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड. ओके, स्पेस चार्ज, space are developed by the avalanche itself is said to transform the avalanche into a plasma streamer. उसी की वजह से यहाँ से एक स्ट्रीम बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर देती है, और ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन अकर कर जाता है. एज शोन इन फिगर, a single electron is starting at the cathode by ionization,
ठीक, बिल्ड्स अप एन एवलांचे दैट क्रॉसेस द गैप, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का तूफान ले आता है और वो जाकर एनोड पर ख़त्म होता है, गैप क्रॉस कर देता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एवलांचे मूव वेरी फास्ट कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस यहाँ जो डेवलप होते हैं वो इतना तेज़ कैथोड की तरफ मूव नहीं कर पाते। ओके, बाय द टाइम इलेक्ट्रॉन्स रीच द एनोड, जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके एनोड पे मूव करेंगे, द पॉजिटिव आयंस आर वर्चुअली इन देयर ओरिजिनल पोजिशंस, ओके, एंड फॉर्म अ पॉजिटिव स्पेस चार्ज एट द एनोड। वर्चुअली वो वहीं रहते हैं जहाँ होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते इतनी फास्ट। सो दिस एनहेंसेस द फील्ड। अब इसकी वजह से यहाँ जैसे आपने देखा तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे और वो एनोड तक जाएंगे, तो यहाँ बीच में आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्पेस चार्जेस डेवलप होते चले जाएंगे और एक एवलांचेस आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से लेके एनोड तक आपके कनेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रीम बन जाती है, एक लाइन बन जाती है इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट कर देती है इसको, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन अगर करता है। We will discuss that. This enhances the field and the secondary avalanches are formed from the few electrons. ये तो एक पहला हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, बट अब जो पॉजिटिव आयंस आपके कैथोड की तरफ आएंगे, जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आएंगे तो वो कैथोड से जब टकराएंगे तो दे गिव मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस enhances the field and the secondary avalanches are formed from the few electrons produced due to photoionization in the space charge region. ठीक है, this occurs first near the anode where the space charge is maximum. This result in a further increase in the space charge. अब उसमें जो और इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप हो जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे, जब वो एनोड के करीब पहुंचेगा, और जितने ज़्यादा एनोड इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर होंगे वो उतने ज़्यादा आयंस आपके डेवलप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्पेस चार्ज वहाँ पर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पेस चार्ज जो होगा वह आपका इट शुड बी नियर द एनोड। दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट एंड द पॉजिटिव स्पेस चार्ज एक्सटेंड्स टू द कैथोड वेरी रैपिडली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रीमर। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज आपके डेवलप होते चले जाएंगे वो एक स्ट्रीम की शक्ल ले लेंगे। कंपैरेटिवली नैरो ल्यूमिनस ट्रैक अकरिंग एट ब्रेक डाउन एट हाई प्रेशर आर कॉल्ड स्ट्रीमर्स। अब ये स्ट्रीमर क्या होता है वो अभी अगली स्लाइड में हम लोग अभी आपको शो करेंगे। एज सुन एज अ स्ट्रीमर, ये लेट मी शो यू, ये होता है जब आपका कैथोड से यहाँ जब ये जाता मूव करेंगे, यहाँ आप देखिए इस पॉइंट पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पर जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ मॉलिक्यूल्स जो बीच में होंगे उन मॉलिक्यूल से टकरा के वो पॉजिटिव आयन देगा, फिर आगे पॉजिटिव आयन देता चला जाएगा। तो इसी तरह इनसे जो और इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मल्टीपल होते चले जाएंगे उस तरह से आपको ये पॉजिटिव आयन मिलते चले जाएंगे। तो जितने और इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे वो यहाँ जाते जाते इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और उसी वजह से पॉजिटिव आयन्स की मकदार भी बढ़ जाएगी। सो वी गॉट द मैक्सिमम positive ions at the anode side and the maximum electrons also on the anode side. Okay, so this is you are seeing in the V shape for the initial stage. अब जैसे जैसे ये टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा तो ये आपके पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। जब ये आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद से और इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे, तो ये आपका हल्का हल्का इस शेप से इस शेप में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस आपके आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस आपके निकल रहे हैं, जिससे और इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में जब ये पूरा प्रोसेस आकर हो जाएगा उसके बाद में ये पूरी स्ट्रीम की शक्ल ले लेगा, जो ये स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है पूरा इसमें। एज सून एज द स्ट्रीमर टिप approaches the cathode, a cathode spot is formed and the stream of electrons rush from the cathode to neutralize the positive space charge in the streamer. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे उसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। द रिजल्ट इज़ अ स्पार्क एंड द स्पार्क ब्रेक डाउन हैज़ अकर्ड, जिसकी वजह से स्पार्किंग होगी और वो स्पार्क ब्रेक डाउन आपका अकर कर जाएगा। ठीक है, so the three successive stages in the development of the streamer are shown diagrammatically. ये तीनों स्टेजेस आपके यहाँ पर शो कर रखे हैं, जिसमें स्टेज 1 आपकी क्या शो कर रही है, शोज द स्टेज व्हेन एवलांचे हैज क्रॉस द गैप, पूरा गैप इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस आपके ना ये पूरा गैप आपका हो गया। शोज द फिगर बी
in this shows that the streamer has crossed half the gap length. ये अभी आधी स्पेस जो है इसने कवर किया है. Then it shows that in the third one here it shows that the gap has been bridged by the conducting channel. Okay, ये है इसका पूरा प्रोसेस. Meek proposed a simple quantitative criteria to estimate the electric field that transform an avalanche into the streamer. मीक ने वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिसकी वजह से ये स्ट्रीम प्रोड्यूस होगी. द फील्ड ई आर प्रोड्यूस बाय द स्पेस चार्ज एट द रेडियस आर इज गिवन बाय दिस वन. ई आर इज इक्वल टू 5.27 × 10⁻⁷ अल्फा e to power alpha x upon p under root volt per centimeter, where alpha is the Townsend-Furst ionization coefficient, p is the gas pressure in torr, and x is the distance to which the streamer has extended the gap. According to Meek, the minimum breakdown voltage is obtained when ER is equals to E. This is the minimum breakdown voltage. जब ER equals to E के बराबर हो जाएगा, वरना इससे ज़्यादा पर तो अगर ऑब्वियसली करेगा. एंड x equals to D in the above equation. ये दोनों चीज़ें जब इस इक्वेशन में अगर कर जाएंगी तो आपका इसमें ब्रेकडाउन अगर कर जाएगा. So this is all about the streamers theory. Then next we comes to the Paschen's law. What is Paschen's law? Breakdown voltage between two parallel plate electrodes in a gas is a function of the product of. ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन बाय कोलिजन वगैरह में, उसमें पहले पढ़ा था कि आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है. मीक तो गैस डेंसिटी पर, ठीक, रो, और गैस डिस्टेंस जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों पर डिपेंड करता है, विच इज गिवन बाय वी एस इक्वल्स द वी एस मीन्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ रो इंटू डी. इन दोनों का फंक्शन आपका होता है ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है. देन it has been shown earlier that the breakdown criteria in the gases is given as gamma e to power alpha d minus 1 equals to 1. This is not the new equation, this is the earlier equation which we have studied earlier in the breakdown mechanism, Townsend's theory. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर where the coefficient alpha and gamma are the function of E upon P. ये आपके दोनों E upon P के functions थे. We have already studied all these things. Then where the coefficient alpha and gamma, this is not A, just correct it. This is not A, this is, should be alpha. Alpha and gamma are the function of E upon P, that is alpha upon rho is equals to f function f1 of E upon rho, and gamma 2 is also the function of E upon rho. Also E equals to V upon D. This also we have taken from the earlier equation. Okay, now substituting the value of this in these equations, okay, in the above equation, और ये E की वैल्यू V अपॉन डी यहाँ पुट करने के बाद में जो आपको अल्फ़ा और गामा की वैल्यू मिलेगी वी हैव पुट इन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये इन सारी इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन के बाद में वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज़ फंक्शन F2 V अपॉन रो डी e to the power exponential of rho d f1 V अपॉन रो डी minus 1 equals to 1. Okay, this equation is a relation between V and rho d. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है आपकी वोल्टेज और प्रेशर और गैप डिस्टेंस जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स का उसके बीच का रिलेशन शो कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट द ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरीज एज अ प्रोडक्ट ऑफ रो डी वेरीज. ओके, दिस इज बीन शोन इन द Paschen's law. Knowing the nature of function 1 and F2, we can rewrite as voltage is the function of rho d. The plot V versus rho d is called Paschen's curve, which is given over here. यहाँ आप देख सकते हैं Vs ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है और it is depending upon the pressure and the gap distance. Okay, this is the अब ये देखेंगे यहाँ पर जो प्रेशर और गैप डिस्टेंस अगर कम है आपका तो वी आर नीडिंग द वोल्टेज विच इज़ वेरी हाई. ठीक है, अब प्रेशर और रो डिस्टेंस आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ तो दिस इज़ द मिनिमम वोल्टेज ऑन विच वी आर गोइंग टू हैव द ब्रेक डाउन. उसके बाद में जब प्रेशर और गैप डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो फिर जो है वो वोल्टेज आपका बढ़ता चला जाएगा. तो दिस इज़ द कर्व, it is maximum voltage, then it got minimum, then again it is in increasing state. तो rho d के increment के साथ में this should be the behavior of the voltage applied on this. Okay, for the values of rho d greater than rho d minimum, means we are talking about this area, rho d greater than rho d minimum, electrons crossing the gap make more frequent collisions with gas molecules than at rho d minimum. ठीक है,
बट द एनर्जी गेन बिटवीन कोलिजन्स इज लोअर, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा, दे आर वेरी फास्ट बिटवीन दैट, इतनी एनर्जी वो गेन नहीं कर पाएंगे. हैंस टू मेंटेन द डिजायर्ड आयनाइजेशन मोर वोल्टेज हैज़ टू बी अप्लाइड बिकॉज द आयनाइजेशन इज गोइंग गेटिंग फास्टर. उसकी वजह से हमें वोल्टेज और अप्लाई करने पड़ेंगे. देन when we come to this area, that is the ρd less than ρd minimum on the left hand side of this dotted line. In this area if we come, ρd is ρd less than ρd minimum, electrons may cross the gap without even making a collision. बहुत स्लो प्रोसेस होगा यहाँ पर. electrons may cross the gap without even making a collision or making only less number of collisions. ठीक. Hence more voltage has to be applied for breakdown to occur, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ ब्रेक डाउन अकर कराने के लिए, मीन्स ब्रेक डाउन जब अकर करेगा इस कंडीशन, अगर प्रेशर आपका कम है, डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स का, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रेशर एंड द डिस्टेंस जब कम होगा तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा, तब आपका ब्रेक डाउन अकर करेगा. ओके, सो द पैशन्स लॉ इज शोइंग अस दिस कंडीशन. So thank you, thanks a lot.